force on 1st April 2015. This was the period in which all teachers teaching at the primary level had to get trained to be eligible to teach in the elementary schools. Now, all teachers are required to do a diploma in elementary education. The government at that point of time assessed that there were about 10 lakh teachers to be trained, but I believe this was only the government figures, the teachers teaching in the government schools. No assessment was made of the teachers teaching in private schools, and they were equal in numbers. 1st April 2015, all training stopped because the act said by 1st of April, all teachers had to be trained. Thankfully, the government now has taken a great decision. On 10th of August 2017, the government had amended the law and passed that all teachers teaching at elementary level must get trained by the 31st of March 2019. This is a great initiative of the government, and we must thank that the government has identified the National Institute of Open Schooling to be the nodal agency. Now, I want to share some intricacies about this program. There are two levels in the elementary section where teachers teach, classes 1 to 5 and 6 to 8. All those teachers who are teaching at the elementary level must have +2 certificate. They must have passed +2, and they must have at least 50% marks. 5% concession has been given to the teachers belonging to the scheduled caste, the scheduled tribe, the other backward classes as identified by the central government, and the physically handicapped teachers. Rest all must have 50%. Those teachers who are teaching at the upper primary level, that is classes 6 to 8, and they have done a B.Ed, they may not do the D.El.Ed. They would be required to do a 6 months bridge course approved by the NCT and developed by the National Institute of Open Schooling. We will take up concentrating on admission to the D.El.Ed program. So who all should take admission? All those teachers teaching in government schools, government aided schools or private schools. They must all take admission. We have been asked by many teachers about those who are guest teachers, part-time teachers. They are not eligible. Please refer to the Act, and only those teachers who have been identified as teachers in the schools defined by the Right to Education Act are eligible to take admission in the D.El.Ed program. We have put up a frequently asked questions section on our website, the NIOS website. You can refer to it and get answers to your queries. The National Institute of Open Schooling website has a section for the Diploma in Elementary Education. If you go to the NIOS website, that is www.nios.ac.in, or you can directly go to dled.nios.ac.in. You can access all information about the D.El.Ed program. So, go to that section and find out who are eligible and what is the process of registration. There are two parts of it. One is you have to register, and the other is you have to make the payment of the fees of the first year. The program is divided into 2 years, first year and second year. We will do the first year in 2 semesters. First semester will start from 3rd of October and go up to January. The second semester will start from January and go up to April. May we will have exams, and also with the second year will start. So make the payment of fees for the first year only. The fee is 6,000 rupees, but because the Honorable Minister Prakash Javadekar ji wanted that all teachers who are registering to the D.El.Ed program should get a concession, because they will have to purchase a DD dish. So we have made a concession and you pay only 4,500, but make sure you obtain a DD dish so that how will you access the study material? The MHRD has developed a portal by the name SWAYAM. We are putting all our material, study material, on the SWAYAM platform. You can access study material for the first semester. All the material will be available by 3rd of October and you can start studying. Simultaneously, on the SWAYAM Prabha TV channel of the teacher education, that is channel 32, will broadcast lectures. Listen to the lectures on the SWAYAM Prabha, read your material on SWAYAM, and you will also have the option of asking questions to the teacher in charge, that is the course coordinator. We will make arrangements for your
संस्थान में आपका स्वागत है। ऐसे सारे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं परंतु कभी भी प्रशिक्षण नहीं पाए, उन्हें विद्यालय में पढ़ाते रहने के लिए यह जरूरी है कि वो प्रशिक्षित हों। आपको पता है 2002 में हमारे संविधान में यह संशोधन किया गया था और शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर समाहित किया गया था। 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के आधार पर कोई भी ऐसा शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है अप्रशिक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए 2009 से 15 तक। अब सरकार ने संशोधन किया है और यह मौका एक बार फिर से शिक्षकों को दिया है कि आप अपना प्रशिक्षण 2019 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और अप्रशिक्षित हैं, इसका तात्पर्य यह है कि दो चीजें होनी चाहिए। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और आप अप्रशिक्षित हैं तो आपका नामांकन हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपको 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए। तो तीसरा शर्त यह है कि आप 12वीं पास हो और आपको 50% अंक हो। जो शिक्षक अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर चुके हैं या स्नातकोत्तर कर चुके हैं और उनको 12वीं में 50% नहीं था, तो उनको भी यह करना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं में 50% होना अनिवार्य है, सिवाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप टीचर्स के। तो ऐसे शिक्षक जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 5% अंक की छूट है, तो उन्हें 45% अंक होने चाहिए। लेकिन अन्य शिक्षकों को 50% अंक होने चाहिए, वो इस कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। जिन शिक्षकों को 50% नहीं है, वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा शुल्क और जुटाइए ताकि आपका ओवरऑल 50% हो जाए। जो शिक्षक अभी नामांकन कराना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर है। हम लोगों ने नामांकन 16 अगस्त को शुरू किया था और 15 सितंबर को यह बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी करें और अपना नामांकन कराएं। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वो NIOS के वेबसाइट अर्थात www.nios.ac.in पर आकर के जो हमारा DLED का वेब पेज है, जिसका ID है dled.nios.ac.in पर स्वयं अपना नामांकन करा सकते हैं। लेकिन उनके प्राचार्य को उनके डेटा को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इस पूरे कार्यक्रम का फीस 12,000 है, पहले वर्ष में 6,000 और दूसरे वर्ष में पुनः 6,000। लेकिन पहले वर्ष के 6,000 के फीस में 1,500 रुपए का छूट दिया गया है ताकि आप DD का डिश खरीद सकें। हम लोगों ने समस्त अध्ययन सामग्री स्वयं प्लेटफॉर्म पर रखा है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने अपना एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म स्वयं के नाम से लॉन्च किया है। आप गूगल पर जाकर के और सर्च करें तो आपको स्वयं मिलेगा। उसमें आप DLED खोजिए तो आपको DLED के कोर्सेज मिलेंगे और आप स्व अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। आप इन लेक्चर्स को सुने। इसके लिए जरूरी है कि आप डिश खरीदें और इसीलिए 1,500 रुपए का छूट आपके फीस में दिया गया है। जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होंगे वो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और वो आपको बाद में पता चलेगा। आपका नामांकन 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। हम लोग आपको इसकी सूचना 30 सितंबर तक देंगे और 3 अक्टूबर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। आपको स्व अध्ययन करना है और जो पहला सेमेस्टर है वो 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 जनवरी तक जाएगा। उसके बाद हम परीक्षा कराएंगे। परीक्षा कई बार कराएंगे ताकि आप अपने को और बेहतर करके और पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप जितनी बार चाहें परीक्षा दे सकें। फीस देना पड़ेगा जो 250 रुपए है। पहले सेमेस्टर में जो 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 15 जनवरी को खत्म होगा, 3 विषय 3 पर्चे पढ़ने होंगे और इसके लिए जरूरी होगा कि आप मूक पर अपना कोर्स पढ़ें और स्वयं प्रभा पर अपने लेक्चर सुने। आपके साथ एक शिक्षक भी होंगे जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ में हम लोगों ने एक ऐप भी डेवलप किया है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं तो NIOS DLED सर्च करें, आपको मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लें। हम लोगों ने समस्त जानकारी और अध्ययन सामग्री इस ऐप पर डाला है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई परेशानी आए तो आप हम लोगों को मेल करिए, हम आपकी मदद करेंगे। इस ऐप पर हम लोग अच्छे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स, जो कि हम डालेंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि
आपके पढ़ने की जिम्मेवारी आप पर है, स्व अध्ययन करना है और आपको ही समय निकालना है। ये एक सुनहरा मौका भारत सरकार ने दिया है और अंतिम मौका दिया है कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो NIOS के पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से करना पड़ेगा। आपको लगातार सूचना हम आपके SMS के जरिए देते रहेंगे क्योंकि आपका मोबाइल नंबर मेरे पास होगा, तो हम लोग आपको घड़ी घड़ी जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी सूचना देंगे और समाचार से अवगत कराते रहेंगे।